So, very good morning, children. Today we are going to learn uh, Physics Chapter 3, Part 2. So, in the Part 1 video, we have learned about the derivation of Ohm's law and resistivity, conductivity, resistance, series combination, and parallel combination. So, anyway, series and parallel combination of resistance and are not there in the syllabus. Omitted from the syllabus this year. So let's continue with the next topic, that is power dissipated or power delivered. So power, electrical power or energy consumed per unit time. Power is already defined as, power P is equal to work upon time. So whether it is the power dissipated or power delivered, whatever. So energy, work is equal to energy by work energy theorem that you have learned in class 11. So energy consumed per unit time, your work done per unit time, that is the power of an electrical device. So it consumes electrical energy. So how will you find a formula for work done? So a very simple method is energy, your work. You already have a formula you have learned in class 10. The definition of potential difference is the work done to move a unit positive test charge from one point to another. So if you are moving q charges, then you divide it by q charges, then you will get the work done to move a unit positive test charge from one point to another, which is called the potential difference. So work done is equal to V into Q, it will be. So in differential form I can write it dW upon dt, or P is equal to d upon dt of W, V into Q. And here potential difference across the conductor or resistor, whatever in the circuit we are given, is constant, and we can take V outside, dQ by dt. So dQ by dt is I. So this is a simple way to find the power dissipated or power delivered, the energy consumed per unit time by a device. Power is equal to voltage into current, and you can use Ohm's law, V is equal to IR, and put instead of V IR, then you get P is equal to I square R. Or otherwise you put I is equal to V upon R. So instead of I you put V upon R, then you will get V square upon R. So P is equal to V square upon R. So these are the three parallel formulas for electrical energy consumed per unit time, means power. Okay, so let's go to the next topic, that is the important topic for us, cell, and the topic is cell and combination of cells, series combination and parallel combination. But before that, let's study something about EMF and internal resistance. EMF and internal resistance, और EMF का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाना है तो सिंपल बात है कि एक हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एक लो पोटेंशियल होना चाहिए. So when there is a difference in potential, your potential difference is applied across a conductor, then the charges will flow. So कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. सो एक तरह की पोटेंशियल डिफरेंस ही है EMF, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे. अभी सबसे पहले मैं आपको एक प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव द सेम पैटर्न, और यहाँ पर हम एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नहीं देख रहे. सो हियर वी आर जस्ट गोइंग फॉर ए सिंपल construction of a
a basic idea of a primary cell. It has two electrodes. Normally a primary cell has two electrodes, and there is an electrolyte. There is a semi-fluid or a fluid medium, whatever, or a solid medium, whatever, but it is an electrolyte. So one positive electrode is there, one negative electrode is there, and there is a chemical reaction occurring between these electrodes and the electrolyte. So electrodes or electrolyte, just as you have learned in chemistry or even छोटे क्लास में सीखा electrolysis, है ना, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, या even you can सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेके और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स और फिर उसमें सेल अगर आप कनेक्ट करेंगे या उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, देन द इलेक्ट्रोलाइट जो है इट विल split into ions, Na plus ions and Cl minus ions. So such experiments you have learned in lower classes, but now here we are going to learn something else different. यहाँ पर कोई सेल अपन बाहर से नहीं दे रहा, ये खुद एक सेल के रूप में एक्ट कर रहे है ना. So it has a positive electrode and negative electrode and some electrolyte, and because of some chemical reaction, suppose electrons are getting over here, accumulated over here, then it is at negative potential, then this will be at positive potential, and automatically there is a potential difference. And if you connect this across a bulb or whatever, a resistor, then if it is a bulb, then bulb will glow, because there is a transfer of electrons between these two electrodes due to potential difference, transfer of charges due to potential difference. So a cell, I should say, it's a device which can maintain a steady current in a circuit, which can create a current in a circuit. That is actually a cell is. So एक freshly prepared cell जो है और वो steady current को पैदा करता है, फिर बाद में जब वो बैटरी बिल्कुल wear out हो जाता है या यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे उसकी करंट कम हो जाती है, वो बात अलग है. But a freshly prepared cell, it will give you a steady current. So a cell, it is a device which can give you a steady current. और ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब कोई करंट सप्लाई आप नहीं दे रहे हैं, है ना, there is no current supply, then what is a maximum potential difference? What is the actual potential difference when there is no current drawn from the cell? And that potential difference is called epsilon, और जिसको हम बोलेंगे electromotive force, EMF. Okay. And what about the next topic, internal resistance? So EMF का सिंपल मतलब है एक सेल है, और अगर आप नॉर्मल एक सेल की बात करें जो आप घर पे यूज करते हैं, है ना, लुक्स लाइक दिस, और ये जो सेल है ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इसका, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को अपन नॉर्मली 1.5 वोल्ट के आता है, और ज्यादा वोल्ट का भी 9 वोल्ट का भी आता है ना, डिफरेंट वोल्टेज के आती है. सो ये नॉर्मल जो छोटा पेंसिल सेल और जो आप व्हाट इज इट क्लॉक में डालते हैं और you use in remote controls, all these are actually 1.5 volt. So this cell, इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, and that potential difference is called the EMF of the cell, E, epsilon, capital epsilon. और अभी बात ये है इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? It is a resistance offered by the contents of the cell. अब contents क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड्स है और एक इलेक्ट्रोलाइट, और ये यकीनन एक 100% कंडक्टर नहीं है, इसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस है ना, ये इलेक्ट्रोड्स का भी खुद का रेजिस्टेंस है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका भी खुद का एक रेजिस्टेंस है, और ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इंटरनली एक सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है. एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी फिर होता है, क्योंकि ये सेल को अपन डिनोट करेंगे ऐसे, एक दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. सो ये सेल को अगर आप कनेक्ट करेंगे एक रेसिस्टर के साथ, सो इसका वोल्टेज अगर मान लो V है सपोज, अगर E है सपोज, देन एप्सिलॉन इसका वोल्टेज है. सो यहाँ पर जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है उसको हम IR बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR. सो यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगा V इज इक्वल टू IR है.
सो अगर इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये जो ई है और ये आई आर है ये दोनों सेम होता, ई इज इक्वल टू वी होता बिल्कुल। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से पूरा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता। फॉर एग्जांपल ई का वैल्यू अगर 10 वोल्ट है तो पूरा 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता, यहाँ पे मान लो 9 वोल्ट ड्रॉप होता है और बाकी 1 वोल्ट कहाँ चला गया भाई? एक्चुअली इट हैज 10 वोल्ट, इसका एक्चुअल वोल्टेज 10 वोल्ट है, लेकिन बाहर जो रेसिस्टर या बल्ब या जो भी आप कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो ओनली 9 वोल्ट है, बाकी 1 वोल्ट कहाँ चला गया? इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी, है ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड्स। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी तो रेजिस्टर है और वो भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है, V इज IR। तो वहां पर भी एक छोटा सा, है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तभी वो बैटरी अच्छे से काम करेगा। सो इंटरनल रेजिस्टर में यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे अलग से बाहर ही दिखा दिया, हालांकि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस में भी एक वोल्टेज हो रहा है IR, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर और EMF को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन। सो ये जो कंसेप्ट है अपनी, तो ये ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो 10 वोल्ट 9 वोल्ट यहाँ पे अपीयर हो गया, 1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस पे अपीयर हो गया। क्योंकि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर दो रेजिस्टर होती है तो मान लो एक बैटरी आपने लगा दिया 10 वोल्ट का, तो मान लो यहाँ पे 6 वोल्ट अपीयर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी 4 वोल्ट यहाँ पे अपीयर होगा इफ देयर इज नो अदर रेजिस्टर देयर। तो सीरीज में क्या है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल वोल्टेज मिलता है। वैसे भी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन करा था, उसमें भी ऐसा ही वोल्टेज अलग अलग होता है लेकिन करंट सेम होती है। सो दिस इज लाइक अ सीरीज कनेक्शन। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस द रेजिस्टेंस ओवर, मतलब वोल्टेज ओवर हियर IR, और इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट करके लिखेंगे तो E इज इक्वल टू, यहाँ V को I कैपिटल R और ये I स्मॉल लेटर R, ऐसे लिख सकते हैं। So these are the two important formulas that you must remember. Equivalent formula है दोनों सेम है, वैसे नॉर्मली अपन इसी का इस्तेमाल करते हैं। So this is a formula for a cell. तो एक सेल की बात करें उसमें दो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, एक उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्चुअल है जब कोई करंट ड्रॉ नहीं होता वो है एप्सिलॉन, लेकिन जब करंट ड्रॉ होता है, जब करंट एक्सटर्नल सर्किट से चलते हैं, काई करंट फ्लो होता है तो एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज अपीयर होता है वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में भी थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप हो गया या एक तरह की वेस्ट हो गया, है ना। सो वो वोल्टेज है ये, और वो वोल्टेज और बाहर का वोल्टेज मिला के इसका एक्चुअल वोल्टेज होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो अभी आपको सीखने की बात यह है कि इसको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, इफेक्टिव EMF या इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और दूसरा अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। सो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सो मैं एक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया और दूसरे सेल को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दिया, मतलब एंड टू एंड कंबाइन कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। और ये सेल E1 या एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 अलग अलग EMF का है, मान लो एक 1.5 वोल्ट है, एक 2 वोल्ट है, एक 2 वोल्ट, एक 3 वोल्ट, व्हाटएवर। और इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका भी खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है ना। और वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा छोटा ही, एक छोटा वैल्यू होता है, काफी बड़ा वैल्यू नहीं होता। और इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसमें कोई ना कोई सर्किट में इसको जोड़ दिया, व्हाटएवर इट इज, लेकिन वो सर्किट यहाँ पे अपन नहीं दिखा रहे। तो अभी इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। अब कोई सर्किट में आप इसको ज्वाइन करेंगे तो द करंट विल फ्लो। सो व्हेन द करंट विल फ्लो
द करंट I विल फ्लो। एक सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, तो वो बात को पकड़कर इस डेरिवेशन को आपको करना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोनों का, वैसे भी अलग अलग है पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका ओवरऑल कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगी। सो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो हमारे जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। सो V इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस आई आर या एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो अपन यहां पर उसके इस्तेमाल करेंगे V इज इक्वल टू से, यहां पर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगी, और यहां पर भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, और इसका ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम V मान लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ, V1 प्लस V2। सो V1 के जगह क्या लिख सकते हैं आप, E1 माइनस I1 नहीं है, I एक ही है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम रहता है, और एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर। और इसी तरह ये जो V है ये ओवरऑल का है, तो ओवरऑल का कोई ना कोई EMF होगी, और ओवरऑल का कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। करंट तो वही है। So let's go with the derivation. So EMF E equivalent minus I R equivalent is equal to E1 plus E2 minus I कॉमन ले लेंगे तो R1 plus R2 हो जाएगा। So R1 plus R2 हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो अगर आप इसमें E1 प्लस E2 और E को कंपेयर करेंगे और आई आर इक्विवेलेंट और आई आर इक्विवेलेंट को कंपेयर करेंगे, तो I वाला पार्ट और E वाला पार्ट को कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E1 प्लस E2 मिल जाएगा, और माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस आई R1 प्लस R2, जिसमें माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो ये बहुत ही एक आसान डेरिवेशन है, जिसमें बड़े आसानी से समझ में आ रहा है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो इसका रेसिस्टेंस ऐड हो जाती है और इसका EMF भी ऐड हो जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाती है और EMF भी बढ़ जाता है। So that's what all about the series combination. So let's go for the next, that is the parallel combination of cells. Parallel combination of cells. So this one is not so easy as like this. थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So let's go for parallel combination of cells. So two cells I have combined in parallel, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और इनको एक ही जगह मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इसको ज्वाइन किया है. सो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो सेम होगा, हालांकि इसका एक्चुअल EMF E1 है, रेजिस्टेंस R1, एक्चुअल EMF E2 है और रेजिस्टेंस R2. ये तब की है जब किसी कनेक्शन में ये नहीं है ना, खाली एक बैटरी पड़ी है और उसका इलेक्ट्रोड के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है E2 और इलेक्ट्रोड के बीच का एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है E1. लेकिन जब उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, एक कॉमन पॉइंट में कनेक्ट करेगा, तो ये कॉमन पॉइंट का एक खास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके हिसाब से हो, इसके हिसाब से, तो ओवरऑल एक इफेक्ट यहाँ पे A और B के बीच में आएगी. और इसमें भी अपन ऐसे कर सकते हैं कि कोई करंट फ्लो होगा, है ना, यहाँ पर एक I1 करंट होगा और I2 करंट होगा और ये दोनों मिलके यहाँ पे I बन जाएगी और वो I वापस जाएगा. मान लो यहाँ पे कोई फैन चल रहा है या व्हाटएवर यू हैव कनेक्टेड हियर, एक बल्ब कनेक्ट किया, व्हाटएवर यू हैव कनेक्टेड, और उसमें से करंट I गुजर के वापस यहाँ पे I2 और यहाँ पे I1. सो करंट जो लीव करते हैं वही एंटर होता है. I1 अगर निकलेगा तो I1 एंटर होगा, I2 निकलेगा तो I2 एंटर होगा. Okay, so now let's go for
the simple calculation here, the total current is equal to sum of the individual current. और आगे जो रूल आप सीखेंगे किरचॉफ लूप रूल और किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ लॉ करके दो लॉ अपन देखेंगे. उसमें पहला लॉ है जंक्शन रूल, और वो जंक्शन रूल के हिसाब से द करंट लीविंग इज इक्वल टू करंट एंटरिंग. तो यहाँ पर करंट एंटरिंग I1 और I2 है, करंट लीविंग I है, तो I1 और I2 का बराबर ही होगा क्योंकि इस पॉइंट पे करंट कहीं गायब नहीं हो रहा. सो I को ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर. इसमें से I का वैल्यू कैसे निकालेंगे? I का वैल्यू निकलेगा E माइनस वी डिवाइडेड बाई आर. तो वैल्यू यहां पे लिखना पड़ेगा आपको. I इज इक्वल टू I1 के लिए E1 माइनस V1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि V A और B के बीच में, ये भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, ये भी A और B के बीच में कनेक्टेड है. सो इनका पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2. तो ये I जो है, I के जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि I इसका ओवरऑल का है. तो अगर ये दो सेल को आप एक सेल माने तो उसकी EMF क्या होगा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी. तो इसको थोड़ा सा अगर आप स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो आपको यहाँ पर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एक साथ ले लेते हैं और माइनस V अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R2 को एक साथ ले लेते हैं. अब इसमें E वाला पार्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे और ये रेसिस्टेंस वाला पार्ट को कंपेयर करेंगे, सबसे पहले रेसिस्टेंस वाला पार्ट को मैं कंपेयर कर रहा हूँ. माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस V कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस प्लस हो जाता है. तो फिर इसमें V और V कैंसिल, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2. So that will be the value. तो ये जो कंपैरिजन है ये अपन आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, और आप इवन इसको 1 upon R equivalent is equal to है ना 1 upon R1 plus 1 upon R2 आ जाएगी, और इसमें 1 upon R equivalent is equal to R1 plus R2 divided by R1 into R2 by taking LCM. फिर R equivalent तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, R1 into R2 ऊपर आ जाएगा और R1 plus R2 जो है वो नीचे आ जाएगा. So this is actually the equivalent resistance, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जैसा ही है. इसका मतलब है जब आप पैरेलल में सेल को कनेक्ट करेंगे तो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस जो ओवरऑल है वो कम हो जाएगी. और इसका ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ को कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इसमें से, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2. तो इसमें आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले सकते हैं. तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को मैं एक बार मल्टीप्लाई में लाता हूं, और E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इज एलसीएम. और ये R इक्विवेलेंट इसमें से डाल देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 में से R इक्विवेलेंट का वैल्यू इसमें डालेंगे तो आपको एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी. R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 into R2. So you will get R1 R2 cancel, and the final answer is E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. And this value will be almost near about E equivalent only, मतलब E only या E1 और E2. जो E equivalent जो है ये E1 और E2 के आसपास का कोई वैल्यू होगा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से ईएमएफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेजिस्टेंस जरूर, इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर कम हो जाती है और करंट जरूर बढ़ जाता है क्योंकि I इज I1 प्लस I2. सो अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सही रहता है, और ज्यादा वोल्टेज चाहिए
तो सीरीज कॉम्बिनेशन सही रहता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और 2 से ज्यादा है तो भी आपको इसी तरीके से करना है, रिजल्ट सेम नहीं आएगा लेकिन इसी तरीके से करना है। सो अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ लॉस। किरचॉफ लॉस, तो किरचॉफ सर्किट के बारे में कुछ लॉस दिया है। नंबर 1 रूल जो है वो है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल ये कहते हैं कि अगर आपने बहुत सारा तार है ना ऐसे ही बांध रखा है, तो मान लो ये करंट I1 है, ये I2 है और ये I3 है। सो जंक्शन रूल ये कहता है कि करंट एंटरिंग और करंट लीविंग ये इक्वल होता है। अगर इसमें एक और होता और वो अंदर जाता या बाहर आता तो उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता। सो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, दैट इज अ जंक्शन रूल। और इसका सिंपल एप्लीकेशन ही आपको सीखने के लिए, एनीवे आप लोग आगे एक डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बहुत ही एक आसान एप्लीकेशन है इसकी। और खास करके आपके जो सिलेबस है उसमें दे रखा है ओनली सिंपल एप्लीकेशंस, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस भी है। और दूसरा है लूप रूल। लूप रूल ये है कि अगर आपके पास एक लूप है, मतलब एक सर्किट है ना, उसमें एक रेसिस्टर है और भी चीजें या अलग अलग रेसिस्टर दे रखे, सिंपल सर्किट्स बना देता हूं, एक R1 और एक R2 ऐसे 2 रेसिस्टर है और ये एक सेल है। सो अगर इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, सो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस जो अपीयर होगी ओम्स लॉ के हिसाब से V IR, IR1, IR2 जो भी है, इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ऐड करेंगे विद साइन, देन द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 और टोटल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 इन ए कंप्लीट लूप। अब ये 0 होने के लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशन भी यूज करनी पड़ेगी, है ना। 2 टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन है, लेकिन कोई एक टाइप साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से सीखना है। और वो साइन कन्वेंशन ये है कि सेल के लिए एक साइन कन्वेंशन है और रेसिस्टर के लिए एक साइन कन्वेंशन है। सो अगर आप कोई लूप कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज सपोज ए लूप ABCD। सो इन लूप ABCD, सो A से B की तरफ कोई रेसिस्टर नहीं है, लेकिन B से C की तरफ 2 रेसिस्टर है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आप ऐसे जा रहे हो। सो when the current is moving in the same direction, then you can take the sign to be positive. So पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा IR1 वोल्टेज, और यहां पर भी आप भी ऐसे जा रहे हो, B से C जा रहे हैं, करंट भी B से C से जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन सेम है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस, करंट ऐसे जा रहा है और आप भी ऐसे जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो आप इसको पॉजिटिव मानिए। प्लस IR1 प्लस IR2, और आप इधर C से D में, सो यू आर गोइंग फ्रॉम A to B, B to C, C to D and D to A, दैट्स अ लूप। पहले A to B गया, फिर B to C गया, तो B to C आप जा रहे हैं और करंट भी B to C जा रहा है, और C to D आप गया, करंट ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे कोई रेसिस्टर नहीं है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, और D to A जा रहा है, तो उसमें देखो करंट से मतलब नहीं है, आप सबसे पहले कौन सा टर्मिनल को कन्फ्रंट कर रहे हैं। सो वी आर कन्फ्रंटिंग द नेगेटिव टर्मिनल। सो यहाँ पर इसका वोल्टेज अगर V है तो आपको -V इज इक्वल टू 0, ऐसा एक लूप बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज एक्चुअली द लूप रूल।
सो लूप रूल में इसका पोटेंशियल प्लस, इसका पोटेंशियल प्लस, इसका पोटेंशियल जीरो बनेंगे, लेकिन पोटेंशियल में प्लस और माइनस का साइन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अलजेब्राइक सम करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है उनकी अलजेब्राइक सम होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर उनके डायरेक्शन के हिसाब से होती है, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है उनकी अलजेब्राइक सम होता है। और यहाँ पर जो है कुछ साइन कन्वेंशन यहाँ पर हमने जो अडॉप्ट किया वो ये है कि अगर आप रेसिस्टर के साथ साथ जा रहे हैं तो देन दैट इज पॉजिटिव, और उसमें ये रूल है कि पहला, अगर बैटरी का जो पहला टर्मिनल का जो साइन है वो साइन बैटरी का वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो -10 या +10 जो भी है उसका पहला टर्मिनल जो आप इन फ्रंट कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। अगर आप उल्टा लूप करेंगे, सपोज ए इन लूप आप कर रहे हैं ए डी सी बी, ए कर रहे हैं, ए से डी जा रहा है, डी से सी जा रहा है, सी से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, लेकिन करंट तो ऐसे नहीं जा रहा, करंट तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। लेकिन आप अपनी लूप कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप ए से डी जा रहे हैं तो यहाँ पे जो बैटरी का जो पहला टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, सो प्लस भी आएगा, जो भी उसका वोल्टेज है 10 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने बी लिया है। और उसके बाद डी से सी पर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब सी से बी जाएंगे तो करंट आपके ऑपोजिट आ रहा है, तो करंट आपके ऑपोजिट आ रहा है तो आपको -IR2 -IR1, क्योंकि IR2 तो इसका वोल्टेज हो गया, IR1 इसका वोल्टेज हो गया, और इज इक्वल टू द टोटल आंसर इज हियर, द टोटल सम इज 0। सो माइनस of all the potential, sum of all the potential, not minus, sum of all the potential is equal to sigma का मतलब है sum of all the potential is equal to in a loop is equal to 0, that is what actually the loop rule is। अभी हम इस यूज करेंगे जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को प्रूफ करेंगे तब। सो नाउ for this video only this much we are doing, and in the next video I will be giving you the derivation of Wheatstone bridge principle, and then we will be dealing with meter bridge, and then we will be dealing with potentiometer. Meter bridge and potentiometer are the applications of this principle. So in this part 2 only this much. In the part 3 we will be learning about the rest of the chapter.